Okay, dear students, I hope you all have watched our previous video. In that video, we have done some functions of mitochondria, why it is called as powerhouse of the cell. Yes, I think you all have watched carefully. Now, let us proceed to our next part of mitochondria. As we all know, it is present in the eukaryotic cells. Okay, as we need food. हमारी बॉडी फूड से वर्क करती है, एक कार पेट्रोल से वर्क करती है. ओके, एवरीवन नीड्स सम सोर्स ऑफ एनर्जी. एम आई राइट? लाइक वी नीड फूड, लाइक नीड अ कार नीड पेट्रोल. Same cells need energy. That is why mitochondria is there providing energy to it. Okay, mitochondria, it is the plural form. Mitochondria plural है, सिंगुलर क्या होगी? Mitochondrion. Mitochondrion will be the plural form of this. Okay, mitochondria किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में. And we know it is present in the cytoplasm, not in the nucleus. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं. ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी प्रोटीन, लिपिड्स, राइबोसोम्स, डीएनए. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड व्हाट इज देयर इन द डीएनए? ओके, डीएनए के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे कैन डू देयर सेल डुप्लीकेशन, सेल रेप्लिकेशन. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेल रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. ओके, डीएनए इसकी हेल्प करता है रेप्लिकेशन में. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेल रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. ओके, किसके कारण? डीएनए के कारण. वी नो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए एंड राइबोसोम्स. That is why it is also called as semi-autonomous unit. Semi-autonomous unit क्यों बोलते हैं? Because of DNA ribosomes, it is able to perform its own function itself. Okay? Mitochondria को किसी से help की need नहीं पड़ती. Clear to all? Okay. So, the mitochondria is the word which is formed by the combination of two words. किससे बनता है? इसमें माइटो का मीनिंग क्या है? थ्रेड. What is the meaning of mito? Thread. And chondria meaning is granule. Okay. So mito meaning is thread. Chondria meaning is granule. कहाँ प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया? साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं. माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल फॉर्म एंड माइटोकॉन्ड्रियन इज द सिंगुलर फॉर्म. क्लियर? बिकॉज ऑफ द डीएनए इट इज कॉल्ड एज सेल रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. क्लियर? सो फंक्शंस क्या होंगे mitochondria? Functions will be, one is the most important, you should learn it very, means it is very important function. It is known as powerhouse of the cell, as we have done in the previous part, as you have done same in the 8th class also. Powerhouse क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी? एटीपी के अंदर. एटीपी क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी है. क्लियर? ओके, सो second function is it is involved in cellular respiration. Involved in the cellular respiration. Okay, it is also an important function. Cellular respiration means it will break down the food, complex food substance को simple way, means it will break down the food into small pieces for getting energy for the cells. Clear? That is why it is involved in the cellular respiration. Next, it is able to synthesize their own proteins. Able to synthesize their own proteins. क्यों? Because इसमें क्या present है? Ribosomes भी हैं. और ribosomes क्या होते हैं? They are the sites of the protein synthesis. Okay? So here we are again to discuss the structure of mitochondria. It is the structure of mitochondria. You may see here. Its shape can be oval. Shape can be elongated. Clear? इसकी शेप हो सकती है कैसी? इलोंगेटेड भी और ओवल भी. सो यू कैन सी इट इज द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज दैट एंड इट इज द इनर मेम्ब्रेन. यू मे सी जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्ड में है. आउटर मेम्ब्रेन इज सिंपल बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स में है. ओके, जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी.
ओके, जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जब सेल्स के लिए एनर्जी चाहिए, दे वांट मोर सरफेस एरिया, more surface area. If there is a more surface area, it means they can provide the more energy. So inner membrane क्या है, उसको हम stretch कर सकते हैं, okay, by which it gives the more surface energy of area for the energy. Clear? It will give more surface area for the energy. That is why it is called as crystal, because जो crystal है इसको size में क्या स्ट्रेच किया जा सकता है, ओके, सो इट कैन बी स्ट्रेच्ड, बट जो आउटर मेम्ब्रेन है दिस वन, इट विल रिमेन सेम, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, एज इट विल स्ट्रेच इट विल गिव मोर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन है इट इज स्मूथ एंड इट इज पोरस इन नेचर, स्मूथ है और पोरस है, ओके। सो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स इज देयर। मैट्रिक्स क्या है, इट इज द जेल लाइक मटेरियल। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जेल लाइक मटेरियल, जिसमें क्या है, सेल के फंक्शंस के राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स भी हैं, डीएनए इज देयर। इन द डीपली फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जो क्रिस्टी है उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीसोम्स, और इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स विल बी देयर, ओके। यहाँ पे ऑक्सीसोम प्रेजेंट है, यू कैन सी इन द डीपली फोल्ड्स मेम्ब्रेन, और इन ऑक्सीसोम्स का फंक्शन क्या है, एटीपी को जनरेट करना, ओके। ऑक्सीसोम्स का फंक्शन क्या है, टू जनरेट द एटीपी, क्लियर। नाउ राइबोसोम्स आर आल्सो देयर। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, एज वी ऑल नो द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन, वो जहां पे उसकी नीड होगी उसको वहां पे ट्रांसफर कर देना, क्लियर। नेक्स्ट, डीएनए इज देयर, वी नो डीएनए, व्हाई डीएनए इज देयर, बिकॉज अगर इसका आपने खुद का डीएनए है देन दे कैन डू देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ओके। वन क्वेश्चन आई आस्क हियर, if I ask one question to you again, although we have discussed this question 2 times, we have discussed the same question in 8th class also. Why mitochondria is known as semi-autonomous unit? Write down answer in your notebooks once. Please write down everyone answer for 1 minute only. I think you all have just know the answer everyone. Semi-autonomous unit क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें खुद का DNA है, खुद के राइबोसोम्स हैं, okay, and because of these it is able to synthesize their own proteins and it is able to function independently. इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती अपने फंक्शंस पर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ओके। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस क्या है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू द सेल, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, नेक्स्ट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी का फंक्शन क्या है, it is increase the surface area, increase the surface area for providing energy to the cell, okay, it will increase the surface area for providing energy to the cell. Next, जो outer membrane है वो कैसी होगी, it will be smooth and porous in nature. इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज मींस मैट्रिक्स इज जेल लाइक मटेरियल, ओके। मैट्रिक्स क्या है, जेल लाइक मटेरियल है। व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन मींस क्रिस्टी के अंदर क्या है, ऑक्सीसोम्स है। ऑक्सीसोम्स क्या है, व्हिच आर हेल्पफुल इन द जनरेटिंग एटीपी, ओके। इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वी हैव डन हियर माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। आई रिक्वेस्ट you all to revise all these. We will discuss some questions regarding mitochondria if you will watch the video carefully. Okay, just watch the video carefully. You can take a screenshot of this. Clear? Thank you everyone.